Crystal field theory CFT. CFT is based on following assumption. CFT जो है crystal field theory assumption पे based है. Ligand are treated as a point charge. Ligand जो है वो point charge की तरह treat होता है. The interaction between metal ions and ligand is purely electrostatic or there are no orbital interaction between metals and ligand. तो यहाँ पे मेटल आयन और लिगैंड के बीच में जो इंट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है. तो यहाँ पे मेटल और लिगैंड के बीच में कोई ऑर्बिटल्स नहीं है. In an isolated gaseous metal ion, the 5d orbital dx2y2 dz2 dxy dyz dxz have the same energy, that is they are degenerate. तो जो गैशियस एटम्स का आयन आइसोलेटेड है उसका पांचों ऑर्बिटल्स जो है सेम एनर्जी है, मतलब डीजनरेट है. dx2y2 dz2 dxy dyz dzx. When ligand approach the metal ion they create crystal field around the metal ions. तो जब ligand जो metal ion की तरफ अप्रोच करता है तो metal ion के आसपास जो crystal field है वो क्रिएट होता है. If it were symmetrical, the degeneracy of the orbital remain intact. अगर ये symmetrical है तो d orbital का degeneracy जो है वो intact रहता है. Usually, the field created is not symmetrical and degeneracy is destroyed. ज़्यादातर field जो create होता है symmetrical नहीं और degeneracy destroy भी होता है. The d orbital thus splits into two sets, namely dxy dyz dxz. Usually refers by T2G and dx2y2 dz2 called as EG. तो यहाँ पे d ऑर्बिटल जो है दो सेट में डिवाइड होता है. तो T2G जो है सेट उसमें dxy dyz dxz होता है और EG जो सेट है उसमें dx2y2 dz2 होता है. The two sets of orbital now have different energies. तो ऑर्बिटल का दो सेट जो उसमें अलग अलग एनर्जीज है. Separation of energy of these two sets of the orbital in the crystal field splitting parameter. This is denoted by delta 0 for octahedral. तो d ऑर्बिटल का दो सेट का सेपरेट एनर्जी जो है क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर में इसमें डिनोट करते हैं डेल्टा 0 जो ऑक्टाहेड्रल के लिए रहता है. डेल्टा 0 डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगैंड. डेल्टा 0 डिपेंड होता है लिगैंड के स्ट्रेंथ पे. Ligand are then classified as a strong field and weak field ligand. Ligand जो classify होता है strong field और weak field ligand में. Strong field ligand are those in which donor atom are CN, carbon, nitrogen, phosphor. Strong field ligand जो रहता है वो donor atom रहता है जिसमें carbon, nitrogen, phosphor रहता है. Thus CN minor, NCS minor, CO, NS3, EDTA, EN, ethylene diamine are considered to be strong ligand. तो जो दूसरा वीक फील्ड लिगैंड है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड और वीक फील्ड लिगैंड. तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में डोनर आइटम जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोर, फिर CN माइनस, NC माइनस, आइसो, साइनो, फिर कार्बन मोनोक्साइड, अमीन, EDTA, इथिलीन डायमीन, टेट्राएसिड एसिड, EN, इथिलीन डायमीन, इसे स्ट्रॉन्ग लिगैंड कंसिडर करते हैं. They cause large splitting of d orbital and pairing of electron is favored. यहाँ पे d orbital का splitting होता है और electron pairing होता है. Ligand tend to form low spin complex. Ligand जो low spin complex form करता है. They cause large splitting of the orbital, pairing of electron is favored. तो यहाँ पे जो strong field ligand जो है इसकी वजह से d orbital का splitting बहुत होता है और इलेक्ट्रॉन जो पेयरिंग होता है वो फेवर होता है. This ligand tend to form low spin complex. ये ligand जो है मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है. Weak field ligands are those in which donor atom are halogen, oxygen or sulfur.
तो वीक फील्ड लिगैंड जो है, जहाँ पे डोनर एटम जैसे कि हैलोजन, ऑक्सीजन या फिर सल्फर रहता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, thiocyanO, oxalate in the isothiocyanO, then oxalate. In case of ligand, delta zero parameter is smaller compared to energy required for the pairing of electrons, which is called electron pairing energy. तो ये जितने भी वीक फील्ड लिगैंड जो है, ठीक है, डेल्टा ज़ीरो जो रहता है पैरामीटर काफ़ी छोटा रहता है इलेक्ट्रॉन पेयरिंग के एनर्जी से, इसे मिलता है इलेक्ट्रॉन पेयरिंग energy. The ligand then can be arranged in order of the increasing field strength. The ligand जो है वो अरेंज होता है इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ के हिसाब से. Is less than bromide, bromide is less than chloride, chloride is less than H2 minus, less than F minus, less than OH minus, less than C2O2 minus, less than H2O, less than isothiocyanO, less than EDTA, less than ammonia, less than ethylene diamine, less than carbon cyanide and less than carbon monoxide. तो सबसे स्ट्रॉन्ग की लिगैंड कौन सा? कार्बन मोनोऑक्साइड. वीक की लिगैंड आयोडीन. तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो स्ट्रॉन्ग की लिगैंड है, आयोडीन जो है वीक की लिगैंड है. Let us understand splitting of d orbital and formation of octahedral complex. तो d orbital का splitting और octahedral complex का formation जान लेते हैं. In octahedral environment, the central metal ion is surrounded by 6 ligand. तो यहाँ पे octahedral environment में central metal ion जो है 6 ligand के साथ surrounded है. Ligand approach the metal ion along XYZ axis. Ligand जो है metal ion की तरफ approach होता है, XYZ axis है. As the ligand approaches the metal ion, the degeneracy of d orbital is resolved. जैसे जैसे ligand metal ion की तरफ आता है, d orbital का degeneracy रिजॉल्व हो जाता है, d orbital का जो सीम एनर्जी चला जाता है. तो यहाँ पे 5 ऑर्बिटल स्प्लिट होता है, 3 ऑर्बिटल्स T2G और 2 ऑर्बिटल EG में. तो यहाँ पर नीचे जो है 2/5 है और ऊपर जो है 3/5 है. EG the energy, the higher energy set of orbital dz2 dx2y2, the T2G lower energy of said orbital dx y dyz dzx delta 0 10 dq. Energy separation between the two level. तो डेल्टा ज़ीरो जो है 10 dq उसको बोलते हैं एनर्जी सेपरेशन, जो दो एनर्जी लेवल के बीच में है. EG ऑर्बिटल आर रिपल बाय एन अमाउंट ऑफ 0.6 डेल्टा 0. EG ऑर्बिटल जो है रिपल होता है 0.6 डेल्टा 0 की वजह से. T2G ऑर्बिटल कैन टू बी स्टेबलाइज्ड टू एक्सटेंड ऑफ 0.4 डेल्टा 0. T2G ऑर्बिटल स्टेबलाइज होता है 0.4 डेल्टा 0 की वजह से. तो ये क्रिस्टल फ्री स्प्लिटिंग जो किसका? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का है. With close approach of ligand along the axis, the doubly degenerate dx2y2 dz2 EG orbital experience larger repulsion than the triply degenerate T2G orbital. यहाँ पे ligand जो है वो अप्रोच करता है एक्सिस के तरफ. डी डबली डिजेनरेट dx2y2 dz2 जो रहता है EG ऑर्बिटल रहता है वो ज़्यादा रिपल्शन एक्सपीरियंस करता है T2G ऑर्बिटल से. As shown in figure 9.2, the EG set has higher energy than the T2G set by amount delta 0. तो EG set जो है उसका एनर्जी ज़्यादा रहता है T2G से अमाउंट डेल्टा 0 से. Delta 0 parameter is equal to 10 dq units of splitting
ऑफ T2J EG लेवल। तो डेल्टा ज़ीरो पैरामीटर जो रहता है इक्वल रहता है 10 DQ यूनिट से। T2J EG लेवल का स्प्लिटिंग का 10 DQ से इक्वल रहता है डेल्टा ज़ीरो पैरामीटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1, D2, D3 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई T2J ऑर्बिट एंड ओबे द हंस रूल्स। तो यहाँ पर the delta zero parameter is equal to 10 DQ unit of splitting T2G EG level। तो यहाँ पे डेल्टा ज़ीरो पैरामीटर इक्वल रहता है 10 DQ T2G EG लेवल का स्प्लिटिंग का 10 DQ के साथ इक्वल रहता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1, D2, D3 द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड T2G ऑर्बिटल एंड ओबे द हंस रूल। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में D1, D2, D3 जो रहता है T2G ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई करता है, हंस रूल ओबे करता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1, D2, D3, D8, D9, D10 द हाई स्पीड एंड लो स्पीड कॉन्फ़िगरेशन कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए D1, D2, D3 और D8, D9, D10 जो है हाई स्पीड और लो स्पीड कॉन्फ़िगरेशन जो है उनके बीच में फ़र्क नहीं देख सकते। ओनली the electron configuration D4, D7 render the high and low spin complex। सिर्फ D4, D7 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो है हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स दिखाता है। जैसा डिपेक्टेड इन टेबल 9.5 टेबल 9.5 में डिपेक्ट किया है। डी ऑर्बिटल डायग्राम फॉर हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो डी ऑर्बिटल जो है हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D4। तो हाई स्पिन जो है वो वीक फील्ड लिगैंड मतलब क्लोरीन हैलोजन फ्लोरीन दिखाता है और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड दिखाता है जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड साइनो अमोनिया ये सब। तो यहाँ पर हाई स्पिन में हाँ तो यहाँ पे D4 जो रहता है अगर वो हाई स्पिन जैसे कि हैलोजन प्रेजेंट है तो यहाँ पे 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। T2G में 3 इलेक्ट्रॉन, EG में 1 इलेक्ट्रॉन। अगर लो स्पिन है मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड साइनो अमीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है पेयर हो जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा। यहाँ पे 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट है D5 EG T2G। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन T2G में है, ये 2 इलेक्ट्रॉन EG में है, हाई स्पिन है मतलब हैलोजन पेयर में होगा। यहाँ पे लो स्पिन जिसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो यहाँ पे अच्छा वो इलेक्ट्रॉन जो है T2G में रहेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड कार्बन मोनोऑक्साइड है और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट है D6 EG T2G। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन T2G में 2 इलेक्ट्रॉन EG में। तो यहाँ पर T2G में 1 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगा तो यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और लो स्पिन में 6 के 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। नेक्स्ट है D7 EGN T2G। D7 है तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन T2G में और 2 इलेक्ट्रॉन EG में है। यहाँ पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हाई स्पिन में हैलोजन रहता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं होगा, लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो T2G में आके पेयर होएगा। और यहाँ पर D7 में 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है और 1 इलेक्ट्रॉन जो बच गया वो EG में चला जाता है। ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर डेल्टा ज़ीरो। तो डेल्टा ज़ीरो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का फैक्टर
जो उस पर इफेक्ट करते, कौन से फैक्टर है जो क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर में असर करता है। The magnitude of the crystal field splitting depend on the strength of the ligand. तो crystal field splitting का magnitude depend होता है ligand की strength पे। The strong ligand those appear in spectrochemical series approach closer to the center metal, which result in large crystal field splitting. तो strong ligand जो रहता है वो spectrochemical series में appear होता है और वो सेंट्रल मेटल आयन की तरफ आता है, जिसकी वजह से ज़्यादा क्रिस्टल फिटिंग होता है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में क्या होता है, क्रिस्टल स्प्लिटिंग ज़्यादा रहता है इलेक्ट्रॉन पेयर एनर्जी से, और वीक फील्ड लिगैंड का स्प्लिटिंग जो है कम रहता है इलेक्ट्रॉन पेयर एनर्जी से। तो इसीलिए क्रिस्टल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड का स्प्लिटिंग जो कम रहता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड का जो स्प्लिटिंग जो ज़्यादा रहता है इलेक्ट्रॉन पेयर से, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है पेयर होता है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड साइनो अमीन सब रहता है, और वीक फील्ड लिगैंड स्प्लिटिंग जो रहता है वो कम रहता है इलेक्ट्रॉन पेयर एनर्जी से। यहाँ पे हाइड्रोजन रहता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है पेयर नहीं होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कभी पेयर होता नहीं है। और पेयर कभी होगा जब 5 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगा, तब T2G में आके पेयर करेगा। वीक फील्ड लिगैंड हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। Oxidation state of the metal. The metal with a higher positive charge is able to draw ligand closer to it than that with a lower one. तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहता है मेटल का, मेटल जो हायर पॉजिटिव चार्ज के साथ रहता है वो लिगैंड को अपनी तरफ क्लोज लेके आता है कंपेयर टू कम वाला ऑक्सीडेशन स्टेट से। There is a metal in higher oxidation state result in large suppression of T2G and EG set of orbital. तो मेटल जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है उसका सप्रेशन जो रहता है T2G EG सेट के ऑर्बिटल के बीच में बहुत बड़ा सप्रेशन होता है। The trivalent metal ion causes larger crystal field splitting than the corresponding divalent ion. तो trivalent metal ion का crystal field splitting ज़्यादा रहता है कंपेयर टू divalent ion से। The color of the octahedral complex. Octahedral complex का color. I discuss about the formation of an octahedral complex is determined by splitting of the orbital into T2G and EG set. यहाँ पे octahedral complex का formation कब होता है, जब T2G EG set का d orbital के बीच में splitting होता है। The separation of these two set of orbital delta zero. तो यहाँ पे दो set orbital delta zero separate होता है, which can be measured from experiment. एक्सपेरिमेंट से मेजर कर सकते हैं। The delta zero correspond to certain frequency of electromagnetic radiation usually in the visible region. तो delta zero splitting जो रहता है वो कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी पे काम करता है विजिबल रीजन में। कलर कॉम्प्लीमेंट्री टू द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज द ऑब्जर्व। तो जो ऑब्जर्व्ड So delta zero crystal field splitting parameter correspond करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का रेडिएशन से जो विजिबल रीजन में रहता है, और कलर कॉम्प्लीमेंट्री टू द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज ऑब्जर्व। तो जो भी वो फ्रीक्वेंसी का लाइट ऑब्जर्व करेगा ठीक है, वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर को ट्रांसमिट करेगा। कंसिडर टिटेनियम H2O6 complex. The central metal ion titanium has electron configuration of 3D. The electron occupy one of the T2G orbital. तो जो सेंट्रल मेटल आयन टिटेनियम जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D है, तो T2G ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है।
यहाँ पर डी ट्रांजिशन एंड डी सिस्टम में डी ट्रांजिशन ग्राउंड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्जॉर्व करता है और एक्साइटेड स्टेट ईजी में चला जाता है। Absorption of the wavelength of the light correspond to delta zero parameter promote an electron from the T to G level। तो जो लाइट का जो वेवलेंथ रहता है अब्जॉर्प्शन करस्पॉन्ड करता है डेल्टा जीरो पैरामीटर से, जो प्रमोट करता है इलेक्ट्रॉन को T to G लेवल से। Such energy gap in case of titanium H2O6 3+ complex is 20,300 per centimeter। तो ऐसा एनर्जी गैप जो रहता है टिटेनियम H2O6 3+ कॉम्प्लेक्स में 20,300 per centimeter होता है, कारण 20 nanometer to 43 kilojoule per mole and a complementary color to this is imparted to the complex। और complementary color import करता है इस complex को तो टिटेनियम हेक्सा एक्वो टिटेनियम 3 कॉम्प्लेक्स जो है 520 नैनोमीटर वेवलेंथ का लाइट ऑब्जर्व करता है, जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाता है। वायलेट कलर ऑफ द टिटेनियम H2O6 कॉम्प्लेक्स अराइजेस फ्रॉम डी ट्रांजिशन। तो ये जो हेक्सा एक्वा टिटेनियम 3 कॉम्प्लेक्स जो है वायलेट कलर दिखाता है, तो वो 520 नैनोमीटर में किसी येलो लाइट को ऑब्जर्व करता होगा, तो इसीलिए उसकी वजह से डी ट्रांजिशन होता है, क्योंकि वो कलर कोई और कलर एक ऑब्जर्व करता है लेकिन ट्रांसमिट करता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर।